Good morning, dear students. I hope you all are good. So, students, in your SST, we are learning geography, and the chapter which we are learning is Our Changing Earth. So, as you all know, that a lot of change happens in our Earth. Okay, so we have learned endogenic and exogenic forces, and we have learned that Earth is formed on plates, tectonic plates, which keep on moving over the liquid molten magma. Okay, so we will continue this lesson from the topic formation of mountains. So let's begin. Formation of mountains. Plate movements from major landform. The divergent movement of plates causes fractures or faulting with the Earth's surface, whereas the convergent movement of continental plates is responsible for the formation of fold mountains. Movements of tectonic plates create volcanoes along with plate boundaries which erupt and form mountains. So let's see कि mountains कैसे बनते हैं. So as you all know that हमारी अर्थ के ऊपर काफ़ी सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. So tectonic plates have movement, they have convergent movement and they have divergent movement. So divergent movement का मतलब होता है जब दो प्लेट्स आपस में फैल रही होती हैं, and convergent when two plates are joining together and they are colliding. Okay, सो जब डाइवर्जेंट होता है, प्लेट्स आपस में फैलती हैं एक दूसरे से, तो वो ज़मीन में जगह जगह दरार दे देती हैं. ओके, द ब्रेक्स एंड फ्रैक्चर्स इन द इट फॉर्म्स फ्रैक्चर्स ऑन द अर्थ सरफेस. फ्रैक्चर का मतलब उसमें दरार हो जाती है, क्रैक पड़ जाते हैं अर्थ की सरफेस पे. लेकिन जब कन्वर्जन मोमेंट होता है, जब दो माउंटेन्स आपस में, दो लेयर्स आपस में टकराती है, तो वो फोल्ड को देती है, फोल्ड को जन्म देती हैं, जिससे कि माउंटेन्स बनते हैं. ओके, सो एंड बिकॉज ऑफ दिस टेक्टोनिक प्लेट्स वॉल्केनोज आर ऑल्सो फॉर्म. वॉल्केनोज भी बनते हैं जिसके कि इरप्शन होता है. एज यू ऑल नो, वॉल्केनो इरप्ट द लिक्विड मैग्मा फ्रॉम इनसाइड. Did you know the world's tallest mountain range formed when the pieces of earth crust, that is plates, smash against each other in the process which is called plate tectonics? 30 of the world's highest mountains are in the Himalayas. So, as you all know, the tallest mountain range is Himalaya, which is in our country and Nepal. So, in Himalaya regions are also formed by the collision of plates. जब दो plates आपस में टकराती हैं, so they create fold, and Himalayas को हम young fold mountains कहते हैं. And Himalaya has 30 highest mountain peaks. As you all know, the tallest peak is Mount Everest, which is also in Himalaya. Okay. Now let's see what is faulting. When two plates diverge or pull away from Earth, the crust breaks. Due to this, one block of land is uplifted above another. This process is called faulting. So faulting कब होता है बच्चों? जब डाइवर्जन होता है, दो टेक्टोनिक प्लेट्स का डाइवर्जन होता है, तो प्लेट्स के बीच में जो गैप आ जाता है, उससे जो बनता है, दैट इज़ नोन एज, उससे जो क्रिएचर फॉर्म होता है, दैट इज़ नोन एज फॉल्टिंग और ब्लॉक माउंटेन्स. सो माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स भी होते हैं और ब्लॉक माउंटेन्स भी होते हैं. Block mountains are formed by this process. The process of faulting gives rise to block mountains. The uplifted block is block mountain or horst, whereas the down throwback forms a rift or valley. So जब ज़मीन खिसकती है, when the plates diverge, so वो बीच में गैप देती है, एक ऊपर हो जाता है, एक नीचे हो जाता है. So the part which goes up forms the mountains and the part which goes down forms a valley. Okay, वादियाँ. The edge of a fault is steep, which is known as scarp. जो उसका edge होता है, किनारा होता है, काफ़ी ज़्यादा ढलान वाला होता है, which is known as scarp. The Himalayas were formed when the Indian plates and the European plates converged with each other. So जब Indian plates और European plates आपस में एक दूसरे से अलग होती है, खसकती है, so it gave the form of Himalayas. Folding. Now let's see what is folding. When two plates collide, a lot of pressure is directed
to form two sides of Earth crust above them. Due to this huge pressure, the crust rises upward in the form of fold. So folding क्या होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं. You may have seen when two cars hit from front to each other. जब दो कार आपस में आमने सामने लड़ती हैं तो आपने देखा होगा उसका जो हुड होता है विच वी कॉल बोनेट, बोनेट का जो कवर होता है वो माउंटेन की जैसे उठ जाता है. So same thing happens when two tectonic plates also collide with each other. They give rise to mountain जिसे हम fold mountain कहते हैं. So the upfold on the top of the mountain is called the anticline, while the downfold of और द वैली, जो टॉप का पार्ट होता है उसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं और नीचे के पार्ट को हम वैली कहते हैं. एंड इन बिटवीन इज कॉल्ड द सिंक्लाइन, और जो बीच का होता है दैट इज नोन एज सिंक्लाइन. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज अर्थक्वेक्स, व्हाट आर अर्थक्वेक्स एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ अर्थक्वेक. द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक. तो जब अर्थ का क्रस्ट, अर्थ का आउटर लेयर जब अचानक से वो शेक करने लगे, हिलने लगे, that forms earthquake. Earthquake occurs due to various factors like volcanic eruptions, movement of lithosphere, landslides, mine blasts, nuclear test. Is a sudden release of energy in the seismic waves that travel through the crust, literally slipping the tectonic plates, forms earthquake. So earthquake आने के काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे कि रीज़न नंबर 1 इज़ लाइक वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन आते हैं तो भी हमारे पास अर्थक्वेक आ सकता है. एंड व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन लिथोस्फीयर, जब प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है, इट गिव्स अर्थक्वेक. लैंडस्लाइड, माइन ब्लास्ट, न्यूक्लियर वेपन को जब हम टेस्ट करते हैं, बड़े बड़े बॉम्बिंग करते हैं, उससे भी अर्थक्वेक हो सकता है. सो अर्थक्वेक व्हाट हैपेंस व्हेन द एंटायर लिथोस्फीयर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, दैट गिव्स अर्थक्वेक. अभी कुछ दिन पहले बच्चों लेबनान में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था ड्यू टू सम केमिकल. सो उस एक्सप्लोजन की वजह से भी लोगों ने अर्थक्वेक जैसी फीलिंग की थी. ओके, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक focus, while the point on the earth which is vertically above the focus is epicenter. So हम देखते हैं कि जब earthquake आता है तो earthquake की शुरुआत जहाँ से होती है. In this figure you can see at the bottom this line is the starting point which is known as the center of the earthquake, और उस center के just ऊपर this line is known as epicenter. जब सेंटर से वो सतह पे पहुंचेगा, सरफेस पे पहुंचेगा, दैट इज नोन एज एपी सेंटर. सो जब भी अर्थक्वेक आता है आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि अर्थ का सेंटर ये था और उसका एपी सेंटर ये था, वो न्यूज़ वाले आपको हमेशा बताते हैं. ओके, सो दिस इज द फोकस एंड एपी सेंटर. ओके, द सिस्मिक वेव्स ट्रैवल फ्रॉम फोकस and the intensity of earth is maximum near the epicenter. So जब अर्थ आएगा तो फोकस से वेव्स जो है वो, जैसे कि आप ये राउंड फिगर देख रहे हो, वेव्स जो है वो एपिसेंटर से ट्रैवल कर रही है और सबसे ज़्यादा झटका महसूस होगा फोकस के जस्ट ऊपर एपिसेंटर पे. ओके, नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. अर्थक्वेक की डिफरेंट टाइप्स होता है. लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक. Number 1, primary waves. The primary waves or longitudinal waves, push waves, are the fastest waves to reach at the surface first. These waves cause a small displacement. The speed of pull waves, P waves, is about 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो प्राइमरी वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है और वो बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करती है. कहीं भी अर्थक्वेक आता है तो वो फोकस से एपिसेंटर तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑल्सो. ओके, सेकेंड हम देखते हैं सेकेंडरी वेव. द सेकेंडरी वेव और अर्थ वेव्स और शेक वेव्स प्रोड्यूस शेकिंग एक्शन. सेकेंडरी वेव से शेकिंग एक्शन प्रोड्यूस होता है, ज़मीन हिलती है. द स्पीड इज़ लोअर देन दैट ऑफ पी वेव्स. प्राइमरी वेव से उसकी स्पीड कम होती है, देयरफॉर दे नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स, इसलिए वो लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकते, सी से ट्रैवल नहीं कर सकते. ओके,
And particles they push through up and down, side to side. There is speed ranging from 2 to 8 kilometer per second in the Earth's crust and up to 13 किलोमीटर in the deep mantle. So आप इसकी स्पीड देख सकते हो, ये भी काफ़ी स्पीड होती है इनकी भी, but it is slower than that of primary waves. So next let's see surface waves. What are surface waves? The surface waves or S waves are the last waves to arrive and travel over the surface of Earth. These waves are main cause for the most of the damage as they are very powerful. Their speed ranges from 1 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड. सो जो वेव्स हमारे अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती है, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस वेव्स, बिकॉज इन्हीं की वजह से काफ़ी ज़्यादा घर टूटते हैं और बिल्डिंग्स और दूसरी सारी चीज़ों का नुकसान होता है बिकॉज ऑफ सरफेस वेव्स. ओके. सो आप लोगों ने सुना होगा जब भी अर्थक्वेक आता है तो न्यूज़ वाले बताते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 9 थी रिक्टर स्केल पर, 8 थी रिक्टर स्केल पर. दिल्ली में अर्थक्वेक आया एंड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वाज 6 इन ऑन रिक्टर स्केल. सो अर्थ को मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइस है, कुछ टूल्स हैं जिसकी मदद से हम अर्थ की पावर को मेजर कर सकते हैं, अर्थक्वेक की पावर. लेट्स सी व्हाट डू वी कॉल दैट. Measuring earthquake. Seismograph is the instrument used to measure the vibration caused by the earthquake. So it is very important for you to remember what is the device used for measuring earthquake. So earthquake को measure करने के लिए जो device use होता है, it is known as seismograph. तो seismograph अर्थ से हुई vibration को फील करता है. आप देख सकते हो seismograph का डायग्राम बना है. There is wire, there is weight and frame and rotary drum, vibration and base. So basically earth क्वेक से प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशन को ही ये मेजर करता है. So seismograph is an instrument used to measure vibration caused by the earthquake in the form of waves. The intensity of the earthquake was measured on the Richter scale, which was invented by Charles Richter in 1935. The Richter scale is a scale number used to tell the size of earthquake. 1 to 10, the earthquake of 2 or less can be felt only a little. The earthquake over 5 can cause damage from things falling. A 6.0 or higher magnitude considered very strong. 7 is classified as the major earthquake. The earthquake with the biggest recorded magnitude was the Great Chilean earthquake with a magnitude of 9.5 on Richter scale. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि earthquake की हम इंटेंसिटी को रिचर स्केल पे मेजर करते हैं. रिचर स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिचर्स इन 1935. सो इस रिचर स्केल पे 1 to 10 तक की मार्किंग होती है, वेयर 1 और 2 आर वेरी लेस. अगर इंटेंसिटी 1 और 2 की हो तो इट्स वेरी लेस, बट इफ इट इज़ 5 एंड अबव, 5 या उससे ज़्यादा की हो तो वो नुकसान पहुंचा सकती है. 6 हो तो उससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है. एंड सेवेंथ, आफ्टर सेवेंथ इट इज़ मेजर अर्थक्वेक. सो जब नेपाल में एक बार अर्थक्वेक आया था बिफोर फ्यू ईयर्स इन 2014 आई थिंक, सो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था एंड द इंटेंसिटी वॉज अबव 8 एंड ऑल. ओके, 8 से ज़्यादा इंटेंसिटी थी. सो जैसे जैसे रिचर स्केल पे इंटेंसिटी बढ़ेगी, 1 मीन्स वेरी लेस, 2 मीन्स लेस और 10 मीन्स मैक्सिमम. सो अभी तक सबसे ज़्यादा हाई जो हमारा भूकंप एक्सपीरियंस किया गया है, दैट वाज अ ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 9.5 था रिचर स्केल पे. तो आप सोच सकते हो जब 5 और 6 आता है तो कितनी ज़्यादा तबाही मचती है, और 9.5 कितना ज़्यादा चीज़ें टूटी होंगी, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा. The earthquake cannot be predicted, but there is a lot of evidence that mammals and birds are able to detect onset of an earthquake. So earthquake को हम predict नहीं कर सकते. Predict means हम उसके बारे में बता नहीं सकते कि कब आने वाला है. बट हमने काफ़ी सारे प्रूफ देखे हैं कि mammals like some animals और birds जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, वो पता लगा सकते हैं कि earthquake आने वाला है. Their behavior is changed before the occurrence of an earthquake, but no one knows how they do this. The loss of the impact can be minimized if we are prepared beforehand. So animals और कुछ mammals और birds earthquake के बारे में पता चल जाता है उन्हें. स्पेशली एलिफेंट, कहा जाता है कि एलिफेंट वाइब्रेशंस को बहुत पहले से महसूस कर लेते हैं और वो पहले से ही जगह को छोड़ के चले जाते हैं. In 2004 when tsunami hit द साउथ ईस्टर्न एशिया, तो जब एशिया को सुनामी हिट करता है, इंडिया पे उसका इम्पैक्ट में आता है. जस्ट आफ्टर
जस्ट बिफोर लाइक नियर क्रिसमस, तो उस समय हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स पहले से ही जो कोस्टल एरियाज था उसको छोड़ के जा चुके थे। वाई? बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। तो अगर हमें पहले से अर्थक्वेक के बारे में पता चल जाए तो हम काफ़ी सारे नुकसान को बचा सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक से क्या नुकसान होता है, क्या घाटा होता है हमारे लोगों को? Tremors in the earth crust produce due to the passage of shock waves during an earthquake. Most earthquakes only last few seconds, but the biggest one can last up to 7 minutes. Aftershocks may continue for years. Earthquakes can make huge openings on the surface of Earth and even change the course of a river. Fences, roads, railway lines may be twisted. Damage to houses, buildings, monuments, and farms are caused by earthquakes. तो अर्थक्वेक से जो अर्थक्वेक जब आता है तो उसका जो हमारे झटका लगता है विच इज़ नोन एज ट्रेमर्स, जिससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा शॉक वेव प्रोड्यूस होती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। एंड कुछ अर्थक्वेक तो कुछ सेकंड्स के लिए छोटे होते हैं, 4 5 6 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं, बट सम अर्थक्वेक कैन लास्ट अप टू मिनट्स। सो जापान में आप देखते हो कि हमेशा अर्थक्वेक आता है एंड इट लास्ट फॉर मिनट्स, मिनट्स तक वो चल सकता है। और यहाँ तक कि अर्थक्वेक आने के बाद जो उसके आफ्टर शॉक होते हैं वो सालों चल सकते हैं। जैसे कि इन 2014 जब अर्थक्वेक आया था, पूरे इंडिया में एक्सपीरियंस किया गया था। मेन अर्थक्वेक की कुछ दिन बाद तक लोगों को थोड़े थोड़े झटके महसूस होते थे। सो अर्थक्वेक से क्या होता है बच्चों, काफ़ी सारा डैमेज होता है क्योंकि वो पूरी धरती को हिला रहे हैं। इट लाइक डैमेजेस द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। सो हाउसेज, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, फार्म्स, काफ़ी सारी चीज़ों की नुकसान हो जाती है। On Jan 26, 2001, at 8:46 a.m., a severe earthquake struck Gujarat, Bhuj. More than 10,000 fatalities and a big loss to property occurred due to earthquake. High-rise buildings, power supply poles, and communication poles were collapsed. So 26 जनवरी को 2001 में गुजरात के भुज में बहुत ही भयानक भूकंप आया था, जिसकी वजह से 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफ़ी लोगों के घर टूट गए, बिल्डिंग्स टूट गई, ऑफिस टूट गए। सो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा सरकार को और हम जनता को नुकसान हुआ। सो व्हाट कैन वी डू बिफोर अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इज़ वेरी राइट सेइंग इन केस ऑफ अर्थक्वेक। सो जैसा कि आप जानते हो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सावधानी जो है वो झेलने से अच्छी होती है। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। वी शुड ऑलवेज नो व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ अर्थक्वेक। So local government and disaster management committees are responsible for managing disaster. Public awareness is to be created through sensitization and training programs. So क्या करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए दैट व्हाट शुड दे डू इन केस ऑफ अर्थक्वेक। लोगों को अवेयर कर सकते हैं हम टीवीज़ पे ऐड दिखा के, या लोगों को ट्रेनिंग दे के, या स्कूल्स में बच्चों को टीचर्स के द्वारा बता के, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट शुड वी डू बिफोर अर्थक्वेक। सो व्हाट डू वी डू व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सेफ स्पॉट देखना चाहिए। टेक अ शेल्टर अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और अ डेस्क अगेंस्ट और इनसाइड द कॉर्नर ऑफ अ वॉल। सो जब भी आपको लगे आप अर्थक्वेक आने वाला है और आप बाहर भी नहीं निकल सकते बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड शेकिंग, सो आप क्या करो, किसी सरफेस पे, किसी मजबूत सरफेस के नीचे छुप जाओ। जैसे कि किचन में जो स्लैब लगा होता है उसके नीचे छुप सकते हो, कोई हार्ड टेबल हो उसके नीचे, या कोई बेड हो जो मजबूत हो उसके नीचे जाके छुप सकते हो। या कुछ भी नहीं है तो आप हमेशा कॉर्नर में खड़े होइए, क्योंकि बिल्डिंग जब गिरती है तो ऊपर से वो गिरती है, कॉर्नर सेफ होते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, जब भी भूकंप आए तो आप किस चीज़ से दूर रहें? फायर प्लेस, एरिया अराउंड चिमनी, विंडोज इन स्कैटर्ड शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम। सो कोई भी ऐसी चीज़ से दूर रहिए जिससे आपको नुकसान पहुंच सके, जैसे कि फायर हो गया, या चिमनी हो गया, या विंडो हो गया, क्योंकि विंडो की तेज़ हवा से टूटने से उसके शीशे से नुकसान हो सकता है। ओके, बी प्रिपेयर्ड। Spread awareness among family, friends and neighbors to face any disaster confidently. और आप अवेयर करिए सबको, लोगों को, so that they can easily handle this situation. So we will study the remaining chapter in the next video, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए।
And I hope you have understood this. If you have understood, then make sure you complete exercise if you can do. Thank you. Have a good day.